आवाज आ रही है अपनी? पहले ज्वाइन तो चलो शुरू करते हैं. Let me share again the whiteboard. Okay, तो मैं कह रहा था ये जो रेफरेंस रिलेशन है फॉर Legendre polynomials. Let me write it again. We've got, it was like n plus 1 multiplied by p sub n plus 1 at x minus x into 2n plus 1 into pn sub at x plus n into p sub n minus 1 of x. This thing is equal to 0. This is what relates the three consecutive terms, yeah, three consecutive polynomials of the Legendre polynomials. Legendre polynomials you already know. So, लेकिन इसकी जो what we call the power series है, वो हमने किया था कल या last वाले lecture में. We know that 1 by square root of 1 minus 2xt plus t square is equal to summation n runs from 0 to infinity p nx into t raised to power n. This is what we are going to use. So what we do, we differentiate both sides. In case तुमने वो किया होगा वो solution by series, something like similar हम वहाँ पर भी करते हैं. मतलब it should, मतलब you should remember that. Differentiating with respect to t on both sides. तो इसका with respect t करेंगे तो पहले तो हमें मिलेगा, ये तो है raised to power what? This is raised to power minus 1 by 2. तो पहले हम इसका करेंगे minus 2xt plus t square whole raised to power minus 1 by 2 plus 1 by 2. It should be plus 1 by 2. Huh? Sorry, minus 3 by 2. Rubber कहाँ गया? Okay. Should be minus 3 by 2 because this is raised to power minus 1 by 2 है ना. एक्चुअली है raised power 1 by 2 लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो minus 1 by 2, तो obviously तुम इसको ऐसे करोगे multiplied by the internal differentiation. internal differentiation क्या आएगी इसकी? Of course हाँ, मैं एक और चीज भूल गया, minus 1 by 2 यहाँ. Internal differentiation with respect to t, it should be just minus 2x plus 2t. So, यानी okay, let me write it properly. मेरे कहने का मतलब है इसके बजाय अगर मैं लिखूं ये d by dt of 1 by square root of 1 minus 2xt plus t square is equal to this. Now you can simplify it a bit. 2 cancel, 2 बाहर आएगा. चलो minus 2 को बाहर निकालते हैं तो you will get, it would be 1 by 1 minus 2xt plus t square whole raised to power 3 by 2 into x minus t. Right? Or I can just multiply both sides by this thing, 1 minus 2xt plus t square into d by dt of 1 by square root of 1 minus 2xt plus t square, good, is equal to x minus t divided by square root of 1 minus 2xt plus t square. मतलब जस्ट हमने सिंबल 3 by 2 है, एक को यहाँ ले गया, आधा बच गया पावर इसका. So which implies, लेकिन ये तो है again, this is again, मतलब if we substitute in place the power series, है ना, so it would imply, चलो अगर मैं यहाँ substitute करूँ और इधर just like this, 1 by square root of 1 minus 2xt plus t square. अब जो यहाँ ब्रैकेट्स में है, एक तो इधर और दूसरा इधर, इसकी जगह अगर मैं डाल दूं पावर सीरीज, because this 1 by root is equal to this power series, so it implies that, let's call it 1. Using 1 I can write 1 minus 2xt plus t square whole multiplied by summation n runs from 0 to infinity
पी एन एक्स टी रेज्ड पावर एन इज इक्वल टू एक्स माइनस टी, ओ सॉरी इसका डी बाई डी टी में भूल गया, ओके, into summation n runs from 0 to infinity, यहाँ dy dt नहीं है, p and x t raised to power n. अब इसको differentiate करेंगे with respect to t, and we assume that we can do that. We are in the sphere, the circle of convergence of the series. In case that is true, क्योंकि हमें actually उसका साथ कुछ करना भी नहीं है ना. अगर एक t के लिए भी ये true है, तो we can just equate the coefficients. So we can just take our circle of convergence, so we can take the derivative inside. So this would be summation n runs from 0 to infinity p n x n times t raised to power n minus 1 is equal to x minus t into summation n runs from 0 to infinity p sub nx t raised to power n. Now we just multiply them term wise, so you will get, पहले तो मिलेगा summation n runs from 0 to infinity, पहले 1 है, so it would be just n times pnx t raised to power n minus 1. मैं वापस जाऊं, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको इसके साथ, मतलब फिर इसको इसके साथ, मतलब and then just distribute it. So it should be minus 2xt. देखो 2xt में आएगा t, जहाँ यहाँ आएगा तो you will get t raised power n. इसी तरह से t square यहाँ आएगा तो you will get t raised power n plus 1. इसी तरह से यहाँ x से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा you will get summation n runs from 0 to infinity p n x t raised to power n plus 1. So ये सब चीजें करते हुए you should get this thing. क्या मिलना चाहिए हमें? Minus 2x summation n runs from 0 to infinity, you would have n p n of x, एक मिनट इसको एडमिट करते हैं, p n of x, of course यहाँ 2xt था तो you should get t raised to power n, और फिर t square था, plus t square था ना, right, it should be plus summation n runs from 0 to infinity n p sub nx into t raised to power n plus 1. और राइट हैंड साइड पे इसी तरह से वहां तो था सिंपली x माइनस टी, सो इट शुड बी पहले x के साथ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं थी, यानी इट शुड बी n runs from 0 to infinity p n x t raised to power n प्लस नहीं माइनस, क्योंकि x माइनस टी था तो इट शुड बी समेशन n run from 0 to infinity we got p n x t raised to power n plus 1. ओके, अब कुछ नहीं करना ज्यादा, देखो यहाँ n 0 है तो पहली टर्म तो इसकी 0 है, बिकॉज n इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हर जगह इधर, बिकॉज यहाँ n n n है, सो आई कैन जस्ट राइट इट एज समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली टर्म तो इसकी 0 हो जाएगी बिकॉज n के साथ मल्टीप्लिकेशन है, माइनस ट्वाइस x समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n p sub n x t raised to power n plus summation n runs from 1 to infinity n p n of x t raised to power n plus 1 is equal to x times summation n runs from 0 to infinity p n of x t raised to power n minus summation n runs from 0 to infinity p n x into t raised to power n plus 1. अब सिंपली लाइक पावर्स को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, सो मतलब इसी को मैं ऐसे देखो पी एन एक्स यहाँ पे है, पी एन एक्स यहाँ पे भी है ना, इसी तरह से यहाँ पर भी है पी एन एक्स, और लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पावर है टी रेज पावर एन माइनस 1 है ना, तो इसमें मतलब एन रन्स फ्रॉम, और यहाँ 0 टर्म भी आएगी, यहाँ 0 टू p0 नहीं आएगा, यहाँ p0 आएगा, यहाँ भी p0 आएगा, लेकिन यहाँ और किसी भी जगह p0 नहीं आएगा, ठीक है, यानी अगर मैं n को 0 करूं तो बेसिकली मतलब यहाँ तो p मतलब n को जब 1 करेंगे, नहीं n को जो 0 करेंगे तो राइट हैंड साइड पे तो टर्म्स आ जाएंगी p0 वाली, लेकिन यहाँ p1 से ही शुरू होगा, तो
सो लेट मी जस्ट करेक्ट इट ना, उसको थोड़ा अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखें, नहीं इसको हम लिख सकते हैं, मतलब लेट्स राइट इट इसी तरह से, समेशन n रन्स फ्रॉम 0 to infinity, फिर हिसाब कर सकते हैं n+1 into p sub n+1 at x into t raised to power n minus x into summation n runs from 0 to infinity to n+1, इसको एडमिट करते हैं पहले, ओके, 2n+1 into p sub n x t raised to power n प्लस, सबको मैंने राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया और इनको इकट्ठा कर दिया। अब सिर्फ ये देखना है हमने कुछ गलत तो नहीं किया, मतलब सारे चीज टर्म्स ठीक से आ गई कि नहीं। n+1 t raised to power n+1 is equal to 0। तो पहले तो हमने सबको किया फ्रॉम n runs from 0 to infinity, वो जरूरी भी था। देखो पहले इस टर्म को लेते हैं, राइट। देखो अगर मैं, पहली टर्म इसकी नहीं थी, लेकिन अगर मैं इसको समेशन n+1 यहाँ कर दूं, तो यहाँ 0 से इंफिनिटी जाएगा ना, आई कैन राइट इट एज, अब के बाद मतलब आई कैन राइट इट एज समेशन n runs from 0 to infinity n+1 p sub n+1 into t raised to power n। देखो अब फर्क है उसमें जो पहले और अब में है, पहले भी था n raised to 0, लेकिन वो पहली टर्म अब, लेकिन हमें देखना है क्या ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि अगर मैं देता हूं n का वैल्यू 0, राइट, व्हाट यू विल गेट, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, n का 0 है तो इट वुड बी p n t, वही आएगा। जब n को 1 देंगे तो ये बन जाएगा p1x इंटू n को जब t, मतलब ये तो 0 आ जाएगा ना, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो यहां पर भी जब n को 0 देंगे यू विल गेट p1x, और जब यहाँ n को 1 देंगे तो वो मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग, जहां n को 2 देंगे, क्योंकि यहाँ पावर को हमने इसके साथ एडजस्ट कर लिया, तो हम ले सकते हैं n runs from 0 to infinity। ये तो एक हुआ, सो दिस इज सेटल्ड, इसको हमने ऐसे लिखा। और फिर बचे ये pn's, वहां पे भी हमने कुछ ऐसा ही किया। तो पहले तो है 2n into pn, जैसे ये है ना 2xn, यहाँ 2n को यहाँ ले गए, राइट। अब देखो 2n था ना, अगर n 0 है तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ हमने 0 से ही शुरू किया, वो इस वजह से हम यहाँ पे चूंकि 0 से जा रहा था ना, और यहाँ पे 0 पे जाने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि जब 0 देंगे तो वो पहली वाली टर्म है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी pn की टर्म के साथ n runs from 0 to infinity था, और यहाँ भी n runs from 0 to infinity करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि we are only adding 0, तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने के बाद इट शुड बी -2x, और यहाँ पे -x है, एक्चुअली 2nx, तो ये वाली टर्म आ गई। ओके, इसी तरह से एग्जैक्टली हमने यहाँ पर भी किया, क्योंकि यहाँ n चूंकि t raised power n+1 था, राइट, यहाँ भी t raised power n+1 था, वो मैच हो रहा था, pn भी मैच हो रहा था। अब सिंपली यहाँ था n runs from 0 to infinity, तो यहाँ हम वापस गए, हमने सोचा नहीं इसको n runs from अगर 0 to infinity करेंगे, we are only adding 0, सो इस तरह से हमने इसको सॉर्ट आउट किया, ताकि pn's pn+1 और pn मतलब वो अलग अलग हो जाएं। ओके, सो दिस वुड इम्प्लाई, अब वही बात है कि अगर मैं n को करता हूं 0, राइट, अगर मैं n को 0 लेता हूं तो यहाँ पे मतलब ये जो वी वोंट गेट द सेम पावर, इधर तो सेम पावर आएगा इन दो टर्म्स में, लेकिन यहाँ वो सेम पावर नहीं आएगा। कहने का मतलब इस ये जो हमारी ये वाली है, यहाँ जो पावर शुरू होते हैं वो होते हैं शुरू t raised power 1, t square, t cube, तो यहाँ पे जो पावर शुरू होते हैं वो होते हैं t raised power 0, t raised power 1, t raised power 2, यानी जब मैं इनको जमा करूंगा, मतलब सपोज आई वांट टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ t raised power 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ t raised power 0 को ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ t raised power 0 ढूंढना चाहता हूं, तो आई एम लुकिंग फॉर द कोएफिशिएंट्स हियर। कहने का मतलब इट इंप्लाइज दैट अगर मैं n को 0 कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, n को 0 कर देंगे यहाँ पे, तो आई वुड गेट कोएफिशिएंट ऑफ t raised power 0 फ्रॉम दीज टू टर्म्स ओनली, बिकॉज यहाँ पे t raised power 0 है ही नहीं। तो कोएफिशिएंट ऑफ t raised power 0 अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ आई शुड गेट p1 माइनस x, चलो p1 ऑफ x माइनस x टाइम्स
n को मैं 0 कर रहा हूँ, n को x टाइम्स क्या होना चाहिए, p0 ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बाकियों में तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे, नो इशू। एंड बाकियों के लिए यू जस्ट राइट एंड, साथ में ये भी, बाकी टर्म्स के लिए तो सारा कुछ मैच हो रहा है, क्योंकि अगर मैं आगे के पावर्स में ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। मेरे कहने का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं, लेट मी, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे, मुझे नहीं पसंद, यानी मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा इसको, n रेज पर 0 की अलग से टर्म लेता हूँ। चलो n रेज पर 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यू कैन राइट इट एज जो हमने अभी लिखा था, n को 0, फिर मैंने क्यों किया, इट शुड बी p1 ऑफ x माइनस x टाइम्स p0 ऑफ x, फिर प्लस समथिंग into t प्लस समथिंग into t स्क्वायर, मतलब समथिंग into t क्यूब, ये सारा कुछ 0 है। और जब चूंकि ये जो 1t t स्क्वायर ये सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो दैट मीन्स अगर कोई पॉलिनोमियल या कोई पावर सीरीज 0 होगी, वो तभी 0 होगी जब उसके सारे के सारे कोफिशिएंट 0 होंगे, यानी ये भी 0 होगा, फिर यहाँ पर भी 0 होगा, लेकिन इनमें एक रिपीटेटिव रिलेशनशिप होगी इसमें और इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्क होगा n, मतलब जब मैंने n को 1 दिया, और ये फर्क होगा सिर्फ जब मैंने n को 2 दिया, मगर फॉर्मूला तो वही रहेगा। ओके, कहने का मतलब व्हाट वी हैव फाउंड इज दैट p1x minus x p0 of x is equal to 0 and n plus 1 जो हम चाहते थे, p sub n plus 1 of x minus x into 2n plus 1 of pn of x plus n times p sub n minus 1 of x is equal to 0। ऑफ कोर्स यहाँ 0 वाला नहीं चलता, क्योंकि पहले ही यहाँ हो जाता फिर -1, सो उसके लिए अलग से, so that's our reconciliation। let's cut this क्लासिकल ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स को यहाँ खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, वरना हम मतलब इसी के साथ रह जाएंगे। ओके, so let's come to now what are called trigonometric polynomials। trigonometric polynomials trigonometric polynomials are important because they are not polynomials essentially. In a way they are polynomials, but from the definition you will see that they are not polynomials. It is just an expression, expression of the type Pn of x is equal to a naught plus summation k runs from 1 to n a sub k cos kx plus iota b sub k sin kx. Of course, ak belongs to the set of complex numbers, bk belongs to the set of complex numbers, is called a complex trigonometric polynomial. Complex trigonometric polynomial of degree n। मगर लेकिन अगर देखें तो इसमें पॉलिनोमियल जैसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। अगर हमें इसको कुछ कहना ही है तो वी शुड कॉल इट फाइनाइट फूरियर सीरीज, और अगर तुम्हें फूरियर सीरीज याद है तो दिस इज जस्ट अ फाइनाइट फूरियर सीरीज। सो बट उसको पॉलिनोमियल कहने की वजह मतलब हमें आगे पता चलेगी। और ऑफ कोर्स एंड लेकिन अगर हम रियल लें, मतलब हम इसको रियल भी लेते हैं, वी कैन टॉक अबाउट द रियल पॉलिनोमियल्स, रियल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स, कुछ खास फर्क नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा, यहाँ आयोटा हट जाएगा और ये जो कोफिशिएंट्स है ए के बी के, ए के belongs to real numbers, a के b के they are real numbers and iota हट गया is the real trigonometric polynomial of degree n। हम भी इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ही करेंगे इसकी, बट दे आर इम्पोर्टेंट, स्पेशली मतलब
मैं अभी हमें पता चल जाएगा ना क्यों। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, जब मैं इसको ऐसे लिखूं, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज dx equal to summation k runs from minus n to plus n ck e raised to power iota kx। पहले तो ये कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो ऊपर वाला summation है, क्योंकि this would be equal to, if you see, it would be k runs from minus n, so it should be minus cn e raised to power iota minus nx plus c sub minus n minus 1 e raised to power minus iota n minus 1 of x plus so on and so forth plus c sub minus 1 into e raised to power minus x plus c sub 0, right? बट जब पावर ही 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस c1 into e raised to power iota में भूल गया, सॉरी, iota x plus c2 e raised to power iota 2x plus so on and so forth cn e raised to power iota x. Now what I do, I just write it as c minus n, ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ cos of nx minus iota sin of nx, है ना। फिर इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ c sub minus n minus 1, अंदर आएगा cos of n minus using the Euler's theorem, है ना, ये पता है ना, e raised to power iota x is equal to cos of x plus iota sin of x। तो ये यूज करके I will get something like this, minus iota sin of n minus 1 times x plus so on and so forth, then I would have c minus 1 of cos of minus x minus iota, मैं क्या किया, नहीं, cos of minus x is the same thing as cos x, iota sin of x, minus बाहर आ गया, right? Then I have plus c0 plus of course c1 into cos x, अब यहाँ के हैं तो plus iota sin x, okay, plus c2 into cos 2x plus iota sin of 2x plus so on and so forth cos nx plus iota sin nx। ऑफ कोर्स यहाँ सी सब एन भी है। अब कुछ नहीं करना, हमें इन कॉसेस और साइंस को अलग से लेना है, राइट? तो पहले तो मैं लाऊंगा यहाँ जो हमारा c0 था, c0 को साइड में रखते हैं क्योंकि इसके साथ कुछ है नहीं। अब cos nx कॉमन है ना, जैसे cos nx, या पहले cos x को लेते हैं, चलो cos x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यू कैन राइट इट एज c सब माइनस 1 प्लस c1 इंटू cos x, राइट? फिर होगा प्लस, देखो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यू शुड हैव माइनस c सब माइनस 1x माइनस 1 प्लस c1 ऑफ x इंटू साइन x प्लस, इसी तरह से, वैसे मुझे इसको पहले लिखना चाहिए, चलो मैं लिखूंगा c2 माइनस c सब माइनस 2 इंटू साइन 2x, इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, ऑफ कोर्स मैं भूल गया, चलो यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस c2 प्लस c सब माइनस 2, अलग अलग साइन और कॉसेस को अलग करना है, सो यू जस्ट हैव टू नाउ द रीनेम देम, है ना। हाँ मैं भूल गया, यहाँ आयोटा भी आएगा, तो साइंस का साथ अपना आयोटा आएगा, कॉसेस के साथ आयोटा नहीं। सो मतलब यू जस्ट हैव टू रीनेम देम, यू c0 को पुट करो तुम a0, और ऑफ कोर्स ये जो a1 को पुट करो, ये जो c सब माइनस 1 प्लस c1 को पुट करो a1, देन आई हैव c सब 1 माइनस c सब माइनस 1 को पुट करो b1, एंड इसी तरह से c सब माइनस 2 प्लस c सब पुट करो a2, एंड c सब माइनस 2 माइनस c2 को पुट करो b2। जब तुम इसको ऐसा सब्स्टिट्यूशन करोगे you will get जो हमारा पहले था, you will get this thing, you will get summation after this substitution, you will get t of x जो हमारा पहला था a0 plus summation ak cos kx
plus iota k runs from 1 to n b sub k sin k। मतलब ये तुम घर पे मतलब रफ, थोड़ा सा रफ वर्क है। इनको कोएफिशिएंट्स को इकट्ठे करना, इसको ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करके इस तरह से करना। सो दे आर द सेम थिंग एज दिस। मेरे कहने का मतलब इट इज द सेम एज वेयर इन दिस a's b's and c's have some relation। जो मैं इसको लिखूंगा summation k runs from minus n to n c sub k e raised to power iota kx। अब इसमें पॉलिनोमियल जैसा हमें कुछ दिखता है, डेफिनेटली दिखता है। वो ये है कि समेशन k रन्स फ्रॉम, मैं इसको लिख सकता था माइनस n टू n सी के, मैं इसको लिख सकता हूँ e रेज टू पावर आयोटा k होल रेज टू, सॉरी आयोटा x होल रेज पावर k। और जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन अब सिर्फ ये है यहाँ x की जगह है e रेज टू पावर आयोटा x, e रेज पावर आयोटा x है x की जगह या z की जगह, जो हमारा पॉलिनोमियल का वेरिएबल है। अब इससे फायदा ये है कि अगर मैं देखूं सॉर्ट ऑफ ए यूनिट डिस्क पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनकी शक्ल ऐसी होती है। मतलब अगर मैं यूनिट डिस्क पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ z, so z is then equal to e raised power iota t। So I can think of a trigonometric polynomial as a polynomial when we restrict it to the unit disk। अगर मैं पॉलिनोमियल को यूनिट डिस्क पे रिस्ट्रिक्ट करता हूं तो z की जगह में e raised power iota t लिखता हूं और it would just look like a polynomial। So that's the idea, not exactly, मतलब मैं कह रहा हूं just look like। तो उससे उसको मतलब रिलेशंस को मतलब दैट इज इट्स कनेक्शन विद द पॉलिनोमियल्स कि अगर हम यूनिट डिस्क पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो वी गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, मतलब नॉट एग्जैक्टली, मतलब जस्ट लाइक some expression like this, some expression like a finite Fourier series, some expression like a trigonometric polynomial। So that's its connection। So before moving ahead, मैं कुछ तुम्हें रिपीट कराना चाहूंगा जो तुमने पढ़ा था फंक्शन एनालिसिस में। फंक्शन एनालिसिस में हमने किया था अपनी जो ये वाली स्पेस है, जब ना हमने फूरिये सीरीज का आइडिया यूज किया था। फूरिये सीरीज का क्या हमने किया था ये कि दिस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, और इसकी जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस थी इट वाज लाइक e raised to power iota n t, of course n runs from minus infinity to infinity, was an orthonormal basis of this space। Actually orthogonal, but to make it orthonormal we just divide by the norm। So we usually write it as 1 by root 2 pi, मतलब वो एडजस्ट करते हैं, लेकिन ऑर्थोगोनल तो है, ऑर्थोगोनली में लिखता हूँ। चलो ऑर्थोगोनल के लिए किसी फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वहां हमने वो किया है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट, मतलब ऑर्थोगोनल होता है ना कि हम कौन सा इनर प्रोडक्ट के तहत ये ऑर्थोनॉर्मल है, और वो जो इनर प्रोडक्ट था वो था एफ जी इज इक्वल टू 1 by 2 पाई। अब इसमें भी थोड़ा सा इशू है, ये जब हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं यूजुअली ये डिपेंड करता है हमने यहाँ किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। नेवरदलेस ये होता है वो एफ टी जी टी बार डी टी, ये हमारा होता अंडर दिस इनर प्रोडक्ट दिस फॉर्म्स एन ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस। अब ऑर्थोगोनल में कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, ऑर्थोनॉर्मल के लिए एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मतलब नॉर्मलाइज करना पड़ेगा इस सीक्वेंस को। ऑर्थोगोनल तो डेफिनेटली है। हाँ कभी कभी हम ये भी करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, फिर वो नंबर अकॉर्डिंगली, मतलब अगर तुम किसी बुक पे ऐसे देखो तो कोई गलती नहीं, वो एडजस्ट करेगा उस नॉर्म को यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा उसी हिसाब से यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई, या यहाँ हटा देगा वहां लगा देगा, या आधा आधा कर लेगा। बट उससे कोई खास हमारी आइडियाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्थोगोनल सीरीज तो ये है ही, ऑर्थोगोनल सीक्वेंस है ये फॉर दिस कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। ऑफ कोर्स इस कलेक्शन में पॉलिनोमियल्स भी होंगे क्योंकि दे आर कंटिन्यूअस, देयरफॉर इंटीग्रेबल, देयरफॉर स्क्वायर इंटीग्रेबल, व्हाटएवर।
So this also contains the polynomials. This also contains, of course, the trigonometry. वो तो है ही, because they form the basis. ये तो basis है इसकी. So before moving any forward, वहां पे हमने कुछ और भी रिजल्ट्स किए थे. क्या क्या किए थे? क्या क्या किया था वहां पे हमने किया था फूरियर सीरीज. फूरियर सीरीज का मतलब ये था कि we can always write a function belonging to L2 0 2 pi as f of whatever t is equal to summation n runs from minus infinity to infinity sum c n e raised to power iota nx. iota nt यहाँ t है तो यहाँ भी t आएगा. ठीक है. So you could write it as some combination. इसको हमने कहा था फिर फूरियर सीरीज उसकी. और देन इनमें आपस में कुछ रिलेशन था. यानी हम फिर ये सी एन को बिल्कुल जैसे तुमने वो यूजुअल फूरियर सीरीज की ना, वही यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ये है. और ये जो सी एन है हमारा, ये बराबर होता था यूजिंग द ऑर्थोगोनैलिटी. इट वाज इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद of course en. By that I mean inner product of f with e raised to power iota nt, which was nothing but, of course, मैंने कहा ना यहाँ थोड़ा ambiguity है, नंबर कौन सा होगा. चलो मैं 2 पाई रखता हूँ. 0 to 2 pi f of t, of course इसका हमें conjugate लेना है, so it would be e raised power minus iota nt dt. मतलब फूरियर कोफिशिएंट्स इस तरह से इवैल्यूएट होते थे. यानी अगर एफ टी इसके बराबर है तो सी एन इज रिलेटेड टू दिस. ना वेरी सिंपल फॉर्मूला, हमें एक्चुअली कुछ खास बदला ही नहीं है ना. द ओनली थिंग इज ये जो इसको कॉन्जुगेट को यहाँ, मतलब इट्स ओनली बिकॉज दिस इज एन ऑर्थोगोनल सीक्वेंस और एन ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस. so far I have got this thing e raised per iota n t. चलो x लिख लो, t लिख लो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो. n runs from minus infinity is an orthogonal basis. Orthonormal basis भी हो सकती है, no issue. And I can write f of t is equal to summation c n runs from minus infinity to infinity e raised to power iota n t, where cn is given by 1 by 2 pi. Again कहीं पर तुम root pi देखोगे तो डरना नहीं, it is just an adjusting factor. 0 to 2 pi, of course f of t into e raised power minus iota nt dt. मतलब ये तुम्हें याद रहना चाहिए हमेशा. फूरियर सीरीज का आइडिया ये है कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, the only thing is it's only possible because this set forms an orthogonal basis for the space. ओके, ये करने के बाद देयर इज अनदर थिंग जो हमने वहां किया था, वो था अपना पार्सेवाल्स फॉर्मूला. पार्सेवाल्स फॉर्मूला कहता है पहले तो ये जो कोफिशिएंट्स हम इस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, दे आर स्क्वायर समेबल. मतलब दिस इज लेस देन इंफिनिटी, n runs from minus infinity to infinity. दूसरा जो कि बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है सारे मैथमेटिक्स में, अगर मैं देखूं, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूलाज होगा अपना पार्सेवाल्स फॉर्मूला. तो पार्सेवाल्स फॉर्मूला है, किस फॉर्म में लिखें इसको? राइट इट लाइक दिस. पार्सेवाल्स फॉर्मूला क्या है? अगर मैं इनका सम करूं तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये cn स्क्वायर i runs from n runs from minus infinity to infinity. क्योंकि अब ये फाइनाइट है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं वो बन जाएगा, चलो स्क्वायर रूट दोनों साइड से हटा देते हैं. सो इट वुड बी 1 by 2 pi 0 to 2 pi f t स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर ले लो dt. ये बहुत ही मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग फॉर्मूला. इट्स कॉल्ड पार्सेवाल्स आइडेंटिटी. यानी ये जो इससे बहुत सारी चीजें साबित होती हैं. एक तो ये कि जो स्मॉल l2 है, हम बता सकते हैं इट्स आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल L2. मतलब ये तो इंटीग्रेबल फंक्शंस है, यहाँ स्क्वायर समेबल, यहाँ स्क्वायर इंटीग्रेबल है समथिंग, यहाँ पे समथिंग है स्क्वायर इंटीग्रेबल. तो ये दोनों को कनेक्ट करती हैं. और इसमें मतलब इट्स नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मतलब बहुत सारी साइंस इस पर डिपेंड करती हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं.
अगर मैं इनका स्क्वायर करके सम करूं और इसको स्क्वायर करके इंटीग्रेट करूं ओवर द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये इस फंक्शन के फूरियर कोएफिशिएंट है relative to some orthogonal basis, then this should always be true. तो मैं चाहूंगा तुम ये याद रख लो. Of course, ये it is related, सारा कुछ ऐसे ही. When got an orthogonal basis, then you can write this like this. Coefficients are this, and coefficients are square summable, and they are equal to this thing. Okay. Now we want to do something with orthogonal polynomials. Now before that, let's take an example. Suppose I want to मतलब ये orthogonality का चक्कर समझने के लिए. So we evaluate this integral. I sub m is equal to 1 by 2 pi 0 to 2 pi cos mt, the cos raised to power mt, cos t raised to power m dt, where m is a natural number. तो पहली बात तो ये है, जो इंटरेस्टिंग बात है, हम ये कर सकते हैं कि अगर ये m odd हुआ तो ये हमेशा 0 होगा. So if m is odd, प्रूव करते हैं, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं. इसमें क्या है, मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तुम भी कर सकते थे, लेकिन चलो यहीं पे कर देते हैं. ओके, वजह क्या है? वजह है अपना ऑयलर्स फॉर्मूला. बाय द वे, देयर इज अ कल्ट समझते हो ना? एक कल्ट है जो इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ द सोल. है ना, ऑयलर्स इक्वेशन. और उसकी काफी वजह है, लेकिन वो कल्ट बकवास है, लेकिन मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, वो इसको इक्वेशन ऑफ द सोल कहते हैं. एनीवेज, तो हम वही इक्वेशन ऑफ द सोल यूज करेंगे. So cos of t can be written as e raised power iota x plus e raised power minus iota x divided, sorry मैंने अब कल्ट इक्वेशन में मैंने x लिखा ना, तो t divided by 2. जाहिर सी बात है, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, then you add them, you will get twice cos t, and then of course the cos t would be this thing. So it means cos raised to power mt can be written as e raised power iota t plus e raised power minus iota t, of course whole divided by 2 whole raised power m. ये खत्म होने वाला है, 1 मिनट है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें इसको फिर से करना पड़ेगा, लेकिन डजंट मैटर, आधा मैं यहाँ कर सकता हूँ. यू जस्ट एक्सपैंड इट बाय बायनोमियल थ्योरम. यहाँ 2 raised power m यहाँ रखते हैं, and put summation k runs from 0 to m cos mk e raised power iota t whole raised to power m minus k into e raised power minus iota t whole raised power k. वैसे इसको पहले, इसको बाद में, डजंट मैटर, यहाँ पर भी हम इसको स्वैप कर सकते हैं, नो इशू. सो ये तो हो गया हमारा बायनोमियल थ्योरम से. तो इसको अगर हम थोड़ा सा ढंग से लिखें, ये बन जाएगा 1 by 2 raised power m summation k runs from 0 to m m sub